ایک دو تین چار سرگودے کی فضا میں ایک ہواباز پرواز کے دوران کچھ گن رہا تھا۔ کیا گن رہے ہو؟ زمین سے کنٹرولر نے وائرلیس پر پوچھا۔ بھارتی ہنٹر، اور کیا؟ فضا سے فلائنگ آفیسر مسعود نے جواب دیا۔ اچھا کنٹرولر نے کہا، میں سمجھا شاید پرندے گن رہے ہو۔ اور یہ گنتی عالمی فضائی مارکوں، تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان کے ایک بے مثال باب کا عنوان بن گئی ہے۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے یہ باب کل 30 سیکنڈ میں لکھ ڈالا تھا۔ ایک دبلے پتلے اور بظاہر غیر اہم سے آدمی نے صرف آدھے منٹ میں فضا میں انڈین ایئر فورس کی شکست اور پاک فضائیہ کی برتری کا جھنڈا گاڑ دیا۔ عالمی فضائی مارکوں میں کسی ہواباز نے ایک ہی جھڑپ اور اس قدر مختصر عرصے میں اتنے طیارے کبھی نہیں گرائے تھے، اور شاید ہی جنگ میں ایسا ہوا ہو کہ ایک ہی ہواباز نے ایک ہی جھڑپ میں ساری ہی جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہو۔ اسی ایک مارکے میں یہ حقیقت بھی جھٹلا دی گئی کہ ہنٹر طیارے پرانی طرز کے سیبر طیاروں سے برتر ہیں۔ اس کے علاوہ اس پرانے مقولے کی تصدیق ہو گئی کہ میدان جنگ میں جو اہمیت جرت اور جنگی مہارت کو حاصل ہے وہ تعداد اور ساز و سامان کو نہیں۔ پاک بھارت جنگ کا دوسرا روز تھا۔ پہلے روز پاک فضائیہ نے دشمن کی سرحدوں کے اندر جا کر پہلا فضائی حملہ کیا تھا، اور اس پہلے ہی حملے میں ہمارے شہبازوں نے جیٹ کے دور کے قدیم سیبر طیاروں سے بھارت کے اہم ہوائی اڈوں پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ میں تباہی مچا دی تھی۔ دشمن کے کئی طیاروں کو زمین پر اور چند ایک کو فضا میں بھسم کر کے بھارتی ہوابازوں پر دہشت طاری کر دی گئی تھی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن کو گمان تک نہ تھا کہ پاکستانی ہواباز یوں بجلیاں بن کر ٹوٹ پڑیں گے، حالانکہ ہندو مسلمان سے 1000 سال سے واقف تھا۔ جنگ کے دوسرے روز سرگودا کی صبح کا اجالا نکھر رہا تھا، اور فضائی اڈے میں فضائیہ کا ہر فرد و بشر کسی نہ کسی کام میں مگن، مستعد اور آگ بگولا تھا، جیسے کسی عظیم ڈرامے کے کردار کسی بھی لمحہ سٹیج کا پردہ اٹھنے کے منتظر ہوں۔ جو آدمی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے وہ بھی مصروف اور چوکنے نظر آتے تھے۔ زمینی توپچی ایمونیشن کے پٹے گنوں سے لگائے آسمان کی وسعت کو تاک رہے تھے۔ ہوابازوں اور گراؤنڈ کریو نے طیاروں کا آخری معائنہ کر لیا تھا۔ اس قدر مصروفیت اور تیاری کی گہما گہمی کے باوجود فضا میں سکوت تھا، لیکن یہ سکوت طوفان کا پیام دے رہا تھا، اور فضائی اڈے میں ہر کوئی بے تابی سے اس طوفان کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی بھی لمحے دشمن کا ہوائی حملہ متوقع تھا، لیکن کسی کو گمان تک نہ تھا کہ اس ایک ہی روز بلکہ اس روز کے چند لمحوں میں سرگودا، جسے پاکستان میں بھی کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، عالمی شہرت یافتہ شہر بن جائے گا، جسے دیکھنے کے لیے برطانیہ، فرانس، امریکہ، جاپان اور دیس کے اخبار نویس اور جنگی واقعہ نگار بھاگتے چلے آئیں گے۔ کسی نے کبھی بھولے سے بھی تصور نہ کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس، جس کی حیثیت جنگی نقطہ نگاہ سے چھوٹے سے ایک فلائنگ کلب سے زیادہ نہیں، کرۂ ارض کے جرری ہوائی بیڑوں میں شمار ہونے لگے گی۔ سورج ابھر رہا تھا، اور فضائیہ کے کارندے اور ہواباز آسمانی آوازوں پر کان لگا کر اور نیلی وسعت میں جھانک کر اکتا گئے تھے۔ انتظار تلخ ہوا جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے طیاروں کو دشمن کے فوجی اور فضائی ٹھکانوں پر حملوں کے لیے اور اپنی بری فوجوں کو فضائی مدد دینے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو دشمن کے ہوائی حملے کے مقابلے کے لیے تیار تھے، مگر حیران تھے کہ بھارتی ہواباز اپنے پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں کی تباہی کا انتقام لینے ابھی سرگودا کو تباہ کرنے کیوں نہیں آئے۔ اچانک فضا میں گرج سنائی دی، سب نے چونک کے دیکھا، ہر کوئی اچک کے اٹھا، اور سب کے اعصاب میں یکبارگی تناؤ اور مزاج میں عتاب آ گیا، لیکن وہ دشمن کا طیارہ نہیں بلکہ اپنا ہیلی کاپٹر تھا جو اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر زمین پر آ گیا، اور بعد میں آسمان سے ایک راکٹ سنسناتا ہوا آیا۔ ہیلی کاپٹر سے چند ہی گز دور گرا اور دھماکے سے پھٹا۔ دشمن نے چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پاک فضائیہ کا انتظار ختم ہو گیا۔ ہواباز اسی دھماکے کے منتظر تھے۔ فضائی حملے کے سائرن چیخ اٹھے۔
इंडियन एयरफोर्स के 6 मिस्टियर त्यारे नीची परवाज करते रॉकेट और मशीन गन्ने फायर करते झपट्टे में आ रहे थे, लेकिन मालूम होता था कि वो या तो जल्दी में है या उन्हें टारगेट के मुतालिक कुछ शक है, क्योंकि उनकी फायरिंग बेनिशाना और बेठिकाना सी थी। ऐन उस वक्त पाक फ़ज़ाइया का एक स्टार फाइटर F-104 जो गश्ती उड़ान पे गया हुआ था, फ़िज़ा में वापस आता नज़र आया। उसकी कॉकपिट में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन था। उसने अपने अड्डे पर दुश्मन के 6 त्यारों को झपटते और फायर करते देखा तो वो फ़िज़ा में तीर की तरह दुश्मन के 2 त्यारों के ऊपर से गुजर आया। मशीन गनों की गरज सुनाई दी जैसे बादल गरजे हों। इस गरज की गूंज अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि दुश्मन के 2 त्यारे फ़िज़ा में बमों की तरह फटे और उनके परखचे और भारतीय हवाबाजों के जिस्मों की बोटियां आसमान में बिखर कर सरगोदे के गयूर मिट्टी में मिल गईं। अमजद हुसैन की गन्नों की बौछारें उनकी तेल की टैंकियों में लगी थी। ये सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। मिस्टियर त्यारों ने फट कर जो धुएं की घटाएं फ़िज़ा में छोड़ी थी वो नहायत आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ उड़ने लगी। फ़ज़ाई अड्डे के जानबाज मखलूक अभी उन 2 त्यारों की तबाही का मंजर देख ही रही थी कि त्यारा शिकन तोपचियों के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोंदल के जियालों ने 2 मिस्टियर त्यारे मार लिए। दोनों सरगोदे के हरे भरे खेतों में गिरे और उनका धुआं अपने पहले 2 साथियों के पीछे पीछे आसमान की तरफ उठने लगा। फ़िज़ा में भारत के सिर्फ 2 मिस्टियर त्यारे रह गए थे, जिनके हवाबाज ज़िंदगी और मौत के इस कदर तेज़ और इस कदर होलनाक मार्के को शायद बर्दाश्त ना कर सके और अड्डे को नुकसान पहुंचाए बगैर जाने बचाकर खिसक गए। फ़ज़ाई हमला ख़त्म हो गया। अभी हमले का इख्तिताम आल क्लियर का सायरन बज ही रहा था कि वो सरगोदे वालों को एक और हमले के लिए खबरदार करने लगा। अब के दुश्मन के 6 हंटर त्यारे आए, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलिम और उसका नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर उनके इस्तकबाल के लिए फ़िज़ा में मौजूद थे। दुश्मन शायद जंगे अजीम दोम की टेक्निक के मुताबिक मौज दर मौज हमला करना चाहता था। पहले 6 मिस्टियर त्यारे आए थे, फिर 6 हंटर आ गए और उनके बाद जाने कौन से त्यारों को आना था। स्क्वाड्रन लीडर आलिम इस हमले को अपनी जुबान में यूं बयान करता है, जब पहले हमले की वार्निंग मिली उस वक्त हम जमीन पर अपने अपने त्यारों की कॉकपिटों में बंधे हुए थे। हमले के दौरान त्यारे उड़ाए नहीं जाते क्योंकि दुश्मन को बड़ा आसान टारगेट मिल जाता है, वो उठते त्यारों को मार लेता है। हमें कॉकपिटों से निकल आने को कहा गया, लेकिन हम निकलने भी ना पाए थे कि हमला ख़त्म हो गया और हम त्यारे में बैठे रहे। हमले के बाद हमने चाय की एक प्याली पी। पूरे 6 बजे सायरन ने एक और हमले के लिए खबरदार किया तो मैं और मेरा नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर भागकर त्यारों में बैठे और उड़ गए। दूसरा हमला नीची परवाज पर आ रहा था। मैं और मसूद फ़ज़ा में चक्कर काटते ऊपर ही ऊपर उठते गए। ज़मीन से कंट्रोलर हमें तेज़ी से बढ़ते हुए दुश्मन के मुतालिक बता रहा था। हमारे दिलों की धड़कनें तेज़ होती चली गई और खून गर्म होने लगा। हम 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे जब कंट्रोलर ने हमें बताया कि दुश्मन के हंटर त्यारे हवाई अड्डे के करीब पहुंच गए हैं और हमला करने के लिए ऊपर उठ रहे हैं। कंट्रोलर के साथ ही मुझे मसूद अख्तर की आवाज़ सुनाई दी, कॉन्टैक्ट। मैंने दुश्मन के त्यारों को देख लिया। मैंने ये भी देखा कि त्यारा शिकन गन्ने उन पर धाड़ धाड़ कर आग उगल रही थी। मैं दुश्मन के त्यारों के पीछे आकर अपने तोपचियों की फायरिंग की बौछारों में हमले के लिए गोता लगा गया। मसूद अख्तर का त्यारा अकब से मेरे साथ चिपका हुआ था। हमने गोते के दौरान परों से तेल की फालतू टैंकियां गिरा दी। जब हम दुश्मन के करीब पहुंचे तो मैंने उसकी फॉर्मेशन के पीछे 2 और हंटर त्यारे उड़ते देखे। इन्होंने हमें देख लिया और उनमें से एक दाईं तरफ घूम गया। मैंने त्यारा ऊपर खींच लिया, वरना मैं उसके ऊपर से गुजर जाता और सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती। मैं घूम कर पीछे चला गया और वापस आकर पीछे से एक हंटर को जद में ले लिया। वो मेरी जद से बचने के लिए दाव पेच खेलने लगा, लेकिन मैंने उसे निकलने ना दिया। ज़रा ही देर के ताक़ुब और दाएं बाएं घूमने फिरने से हमारी बुलंदी ख़त्म हो गई और हम दरख्तों की बुलंदी तक आन पहुँचे। भारतीय हवाबाज ने मुझे ताक़ुब से झटकने के लिए त्यारे को अमूदन ऊपर खींच लिया। उसका ख्याल था कि मैं उसके नीचे से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं भी उसके पीछे अमूदन ऊपर उठ गया और उसकी दुम के साथ चिपक गया।
उसी पोजीशन से मैंने गनों की मुख्तसर सी बौछार फायर कर दी। वो मेरी जद में था। भारतीय त्यारे की बॉडी से शरारे चमके, मेरा निशाना ख़ता नहीं गया था। उसे आग लग गई और मैं ज़नाटे से उसके करीब से गुजर गया। मैंने घूम के देखा, त्यारा जलता हुआ गिर रहा था और दूसरी तरफ फिजा में एक पैराशूट खुला हुआ नीचे जा रहा था। भारतीय हवाबाज त्यारे से निकल गया था। वो इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर स्क्वाड्रन का कमांडर ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर ओंकार नाथ काकड़ था। उसे पकड़ लिया गया। मैं इस ताकुब में देख ना सका कि बाकी हमलावर हंटर किधर निकल गए हैं। फिजा में सरगोदे की हिफाजत के लिए सिर्फ मैं और मेरा नंबर 2 था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं बेताबी से दुश्मन के त्यारों को ढूंढने लगा। इतने में पाक फ़ज़ाइया के 3 त्यारे इसी अंदाज से हमारी तरफ आते नजर आए जैसे हम पर हमला करने आ रहे हों, लेकिन करीब आकर उन्हें हमें पहचान लिया और वो दूसरी तरफ निकल गए। उड़ते उड़ते मैं और मसूद दराए चनाब से परे निकल गए। अचानक मसूद चलाया, हंटर सामने, ज़रा बाएं। मैंने देखा कि 4 हंटर त्यारे बड़ी अच्छी जंगी तरतीब में उड़े जा रहे थे। हमें देखते ही वो तेज़ी से घूमकर ऊपर उठने लगे। मैंने त्यारा घुमाया, उनके पीछे से खासा उनके करीब पहुंच गया। मेरी गन साइट, जिसको शिस्त कहते हैं, के 10 रोशन और बेरहम नुक्ते उन पर मुंजमद हो गए। फिर एक एक को लपेट में लेने लगे। मैंने फायरिंग शुरू कर दी। तमाम आसमान में शरारे चमक उठे और शोले भड़कने लगे। धमाके भी हुए। चंद ही लम्हों में 4 मुर्दा भारतीय हवाबाज जलते हुए त्यारों में बंधे हुए पाकिस्तान के मुकद्दस सरजमीन पर गिर रहे थे। जब आलम के मारे हुए भारतीय त्यारे जलते हुए गिर रहे थे तो उसका नंबर 2 मसूद अख्तर हैजानी कैफियत में गिनने लगा और उसकी आवाज़ ज़मीन पर हवाई अड्डे के कंट्रोलर को भी सुनाई देने लगी। 1 2 3 4। कंट्रोलर फ़ज़ा में हवाई बाजों के साथ राब्ता कायम रखता है। उसने पूछा, क्या गिन रहे हो? मसूद बोला, हंटर। और क्या? अच्छा। कंट्रोलर बोला, मैं समझा परिंदे गिन रहे हो। वो परिंदे ही तो थे, मोटे ताज़े भारतीय परिंदे, शहबाजों का मन भाता शिकार। एक ही मार्के में भारत के 6 में से 5 हंटर त्यारे गिरा लिए गए थे और इस कदर हैरान कुन कम वक्त में जिसकी मिसाल फ़ज़ाई मार्कों के आलमी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। छठा हंटर जो आलम की जद से बच गया था, वो रास्ते में इंजन बिगड़ जाने से बेकार हो गया और उसका हवाबाज पैराशूट से कूद गया। ये गालबन लेफ्टिनेंट कर्नल गोंदल के तोपचियों का कमाल था, लेकिन असूल के मुताबिक कर्नल गोंदल ने कोई सबूत ना होने की वजह से दावा ही ना किया कि इस त्यारे को उसके जवानों ने बेकार किया है। आलिम ने 30 सेकंड में तारीख का वो बाब लिख डाला जो हमारी नस्लें सदियों तक फ़ख्र से सुनती सुनाती रहेंगी।